behalf of Indian Research Scholar Association to today's lecture on the ethical usage of artificial intelligence in academic research. I welcome our chief speaker of today's session, Professor Abhinav Sharma from Department of Political Science, Faculty of Social Sciences in Banaras Hindu University, Varanasi. To begin with, I would like, since Krishna Mohan sir will be starting the session, I would like to hand over to him. So you can. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं विकास जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म जो रिसर्च के लिए इन्होंने मतलब एकजुट किया है, लोगों को जोड़ा है, और जिससे हम लोग और तरह तरह के एक्सपर्ट्स को ये लगातार जोड़ते रहते हैं, और जिससे कि हम लोग अपने नॉलेज में और अपने रिसर्च को और आगे बढ़ा पाने में सक्षम हो पाते हैं। तो सर तो हमारे ही डिपार्टमेंट से हैं। मैं पिछले 10 सालों से सर को जानता हूं, और सर की क्लास जो हमने किया है, जो सीखने को मिला है, तो हम लोग तो थोड़ा सा लेट है, 5-6 मिनट के आसपास, लेकिन सर की पंक्चुअलिटी, क्लास में कभी भी लेट नहीं होते, और जो उनकी क्लास की स्टाइल है, टीचिंग ऑफ स्टाइल है, उसमें एज ए रिसर्च की तरह वो पढ़ाते हैं। मतलब हम लोग जब MA BA की क्लास किया करते थे, तो ऐसा था कि जो भी सर टॉपिक पढ़ाते थे, उस टॉपिक पे पर्टिकुलर साइटेशन, पब्लिकेशन ईयर, ऐसा लगता था कि हम लोग उसी टाइम से रिसर्च करते आ रहे हैं। तो सर का मैं वेलकम करना चाहूँगा। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। It gives me an immense pleasure to welcome you all to this special lecture. We are honored today by the presence of esteemed academician, dedicated researcher, and inspiring mentor, Professor Abhinav Sharma sir. Professor Sharma sir currently serves as a professor and course coordinator of public administration at the Department of Political Science, Banaras Hindu University. With over 2 decades of academic and administrative experience, his career reflects a remarkable commitment to public administration, development. He holds a PhD in public administration from University of Lucknow, and his area of specialization include administrative theory, local governance, financial administration, and public personnel management. Professor Sharma sir has led several significant research projects, including studies of urban sanitization under JANRAM, funded by University Grant Commission, disaster resilience in smart cities, funded by Banaras Hindu University, and ethics of co-designed public service in Uttar Pradesh. His scholarship has been widely published and reputed journal and edited volume with strong emphasis on citizen-centric governance and digital innovation in public service delivery. Beyond research, Sharma sir has made a noteworthy contribution as a thesis supervisor, guiding PhD scholar and postdoctoral fellow. In emerging area of public policy, he is a life member of several prestigious associations, including Indian Institute of Indian Public Administration Association, and life member of Indian Institute of Public Administration, and member of Indian Political Science Association and the International Political Science Association. We are truly fortunate to have with us today. Please join Professor Abhinav Sharma sir. He has delivered a lecture on the ethical uses of AI in research. Welcome you, sir. Over to you, sir. Thank you. Good morning. Namaste. Early onset. I would like to express my gratitude to the organizers of this event, Indian Research Scholars Association, especially its president, Mr. Vikas Kumar, convener, Ms. Arpanpreet Kaur, co-convener, Mr. Krishna Upadhyay, and organizing secretary, Ms. Shubhangi Amle, who has given me this opportunity to share my views and thoughts on the important issue of ethical use of AI, that is artificial intelligence, in academic research. Can I go for both? In English or only English or Hindi? Yes, sir. If possible, then please bilingual. That you can. Because generally
I have the tendency of teaching my students in bilingually, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस विषय पर जितना ज्यादा सहज और सरलता पूर्वक मैं अपनी बात रख सकूं तो अच्छा रहेगा. आई वॉन्ट टू बी एज सिंपल as far as possible. So, the topic of today's discussion is the ethical use of AI in academic research. Especially, we like to focus on social sciences with examples both from other disciplines also. So, I would like to present my this talk into the following sections. First, I would like to introduce behind this particular idea of ethical usage of AI in academic research. पहले मैं बताना चाहूंगा एक परिचय के रूप में कि ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, तो ये शैक्षिक जगत में इसका उपयोग हो रहा है, विशेषकर सामाजिक विज्ञान क्षेत्र में. इसमें किस प्रकार नैतिकतापूर्ण इसका उपयोग करना चाहिए. What are the opportunities? What are the challenges and policy perspectives? क्या संभावना है, क्या चुनौतियां हैं और नीति सम्मत दृष्टिकोण क्या हो सकता है. So, artificial intelligence has become a very powerful tool in academic research, offering novel capabilities in data analysis, simulation, and even writing assistance. In social sciences, researchers are experimenting with AI-driven methods to collect and interpret data at unprecedented scales, from analyzing social media trends to employing natural language processing on large qualitative data sets. The integration of AI promises increased efficiency and insights. For instance, AI systems can swiftly summarize literature, suggest hypotheses, or uncover patterns in complex social data that might elude human researchers. ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो एक प्रौद्योगिक साधन है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक चर्चा का विषय है. तो ये आपको बता दूं मैं कि जो आंकड़ों का संकलन है या संग्रहण है, कलेक्शन है, और उसकी जो व्याख्या होती है, जो भी हम आंकड़े संकलित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसमें ज्यादा इसका उपयोग हो रहा है. इसके साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि जो साहित्य समीक्षा होती है अपने विषय से संबंधित, जो भी विभिन्न स्रोतों का हम अध्ययन करते हैं, तो उसमें जो विभिन्न स्रोत फैले हुए हैं, उसको एकीकृत करके, इकट्ठा करके उसका सारांश जो है प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध हो सकती है ये जो टेक्नोलॉजी है. और साथ साथ इसका विश्लेषण भी हम कर सकते हैं. However, the same AI capabilities that offer advantages also raise serious ethical questions. Concerns have emerged that the misuse of AI could compromise the integrity of academic work. Notably, instances of AI-generated content and even entire papers have led to corrections and retractions in scholarly publishings. In 2023, for example, the number of retracted research articles globally surged past 10,000 in a single year, a record high. तो ठीक है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग हम लोग अपने साधन के रूप में करते हैं, अपने शोध कार्य को सुगम, सहज, सरल बनाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ उसमें कुछ नैतिकतापूर्ण प्रश्न भी हैं. उदाहरण तौर पर कि आज जो प्रचलन हो गया है या चलन हो गया है कि पूरे शोध पत्र जो है या शोध कार्य जो हो रहा है वो AI टूल के माध्यम से होने लगे. एक मैं शोध पत्र पढ़ रहा था, तो उसने कोट किया है कि 2023 में लगभग 10,000 जो है शोध पत्र जो है वो वापस बुलाने पड़े, वापस भेजे गए. क्यों? क्योंकि उसमें जो AI का उपयोग किया गया था
उसका ज्यादा कंटेंट देखने को मिला और उसने एक तरह से प्लेजरिज्म को बढ़ावा दिया, ऐसा मानना है। सो इश्यूज सच एज प्लेजरिज्म, fabrication of data or sources, bias algorithms, and breaches of privacy now loom large and research ethic questions. जो लिखा जा रहा है, जो शोध के रूप में लिखा जा परोसा जा रहा है, क्या उसमें चोरी हुई है, क्या वो फैब्रिकेटेड है, क्या वो एक तरह से कृत्रिम बनाया गया है, फेक है, या उसमें किसी प्रकार का पक्षपात है, एक पक्ष को हाईलाइट किया गया, दूसरे पक्ष को नहीं किया गया, उसमें सब्जेक्टिविटी है, उसमें निष्पक्षता नहीं, तटस्थता नहीं है, क्या जो आंकड़े लिए गए हैं उत्तरदाताओं से उसमें निजता का जो है अतिक्रमण हुआ है। इस तरह के इश्यूज जो है ये मुद्दे देखने को मिल रहे हैं। इफ यू टॉक ऑफ सोशल साइंसेस, our context is quite different. Social science research often involves human participants, sensitive data, and interpretation of complex social phenomena. समाज वैज्ञानिक के रूप में, समाज विज्ञान हो या समाज वैज्ञानिक के रूप में हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि जो हमारे प्रतिभागी हैं वे कौन है? वो मनुष्य है, वो हमारे ही लोग हैं, हमारे जैसे हैं। तो उनका जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी साझा कर रहे हैं, वो बहुत संवेदनशील होती है, संवेदनशाली होती है। साथ साथ में जो उससे जुड़े हम व्याख्या करते हैं वो इतने सरल नहीं है, बहुत जटिल होते हैं। जैसे हमारा समाज में अगर बात करें और हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज एक समाज नहीं है, वो होमोजेनस नहीं है, समरस नहीं है, वो हेट्रोजेनस है। सोशली स्पीकिंग, पॉलिटिकली स्पीकिंग, इकोनॉमिकली स्पीकिंग, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारे अपने कुछ विचार हैं और उन विचारों पर हम अपने जो है जानकारी को रखते हैं, शेयर करते हैं और उसके पीछे देखना पड़ेगा। And if we are using AI, artificial intelligence, or this is not able to, or this tool is not able to take into consideration these particular dimensions, then it will be difficult to use a social science research. So now let us see what are the application and benefits of AI in the research area. अब देखें कि हम इस AI के माध्यम से क्या क्या लाभ पा सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको हम यूज कर रहे हैं या कर सकते हैं। First of all, I would like to highlight the usage of AI in literature review and idea generation. One significant application of AI is reviewing vast bodies of literature and aiding in the generation of research ideas. Large language models like popularly used ChatGPT can summarize academic papers and extract key themes and even suggest potential research questions. This can help scholars stay abreast of developments across disciplines and identify gaps in knowledge more efficiently. तो जो ज्यादातर हम AI साधनों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर है, उसका ओपन जो सॉफ्टवेयर आता है वह, और जो उसके सब्सक्राइब सॉफ्ट वर्जन आते हैं जैसे चैट जीपीटी प्लस भी है, वो ज्यादा महंगा नहीं, कोई लेना चाहे ले सकता है। तो अगर उसको यूज करते हैं तो उसका यूसेज, उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, उसका उपयोग ये करना पड़ रहा है, कहाँ करते हैं, सबसे ज्यादा होता है साहित्य समीक्षा में और नए विचारों का एक तरह से संवर्धन करने में। अशोक पाजे सर को प्रणाम। ये नए विचारों को उसका संवर्धन करने में इसका होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जनरेटिव AI हैज बीन यूज्ड एज अ काइंड ऑफ को पायलट। पायलट आप है, वो को पायलट है। कौन? AI। याद रखिए हमेशा, टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज अ टूल, इट इज नॉट एन एंड।
प्रौद्योगिकी जो है एक प्रकार का साधन है, वह लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य के लिए हम साधन का उपयोग कर सकते हैं। तो पायलट तो हम ही लोग हैं, जो वाहन चालक है हम ही हैं, लेकिन बाकी जो सहायक है, जैसे एक ट्रक की बात करते हैं, ट्रक में एक खलासी भी होता है, तो वो खलासी है AI। So this AI is basically the co-pilot which is used during early research design, offering suggestions for refining research questions and hypotheses. It can be used for quickly scanning databases. अब डेटाबेस है, अब डेटाबेस कौन हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मली पॉपुलरली यूज करते हैं गूगल स्कॉलर है। और अगर एक्सेस करते हैं तो आजकल जो है कंसोर्टियम आ गया है, जैसे JSTOR है, MUSE है, टेलर फ्रांसिस है। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में जो है, अच्छा, इन्फिनिबनेट का यूज किया जा रहा है आजकल, तो ONOS आ गया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आ गया। ये सब डेटाबेसेस है। तो इसमें हमको इंडिविजुअली देखना पड़ता है, बहुत समय लगता है। तो AI के इस तरह से उपयोग करके, जैसे ChatGPT का उपयोग करके हम इसको कर सकते हैं। A recent perspective in the proceedings of the National Academy of Sciences noted that generative AI could improve social science by enhancing tasks like survey design and online experiment creation. तो लिटरेचर रिव्यू करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। कई सारे जो AI टूल बनाए गए हैं स्पेसिफिक लिटरेचर रिव्यू के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि एलिसिट है, ELICIT, जैसे कनेक्टेड पेपर्स हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और बहुत सारे हो सकते हैं। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं जो मैं विगत 1 वर्षों से प्रयोग के रूप में on experimental basis I am also using some kind of tools, both open access and subscription based also. मैं भी प्रयोग शुरू कर रहा हूं कि देखिए क्या है, ये क्या करता है AI tool. So such kind of assistance in reviewing vast bodies of literature and aiding in the generation of research ideas, if used appropriately, could free researchers to focus more on theory and interpretation. वो जो समय व्यतीत होता है, कई बार 1 साल लग सकता है, कई बार 1.5 साल लग जाता है, साहित्य समीक्षा में लग जाता है, सिनॉप्सिस के दौरान तैयारी में हो सकता है, तो वो आपका समय कम कर सकता है। समाप्त नहीं करेगा, कम कर सकता है, कैन लेसन द टाइम। और आप थ्योरी में उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है और उसकी व्याख्या में जो है समझना बिता सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड benefit of AI is in the area of data collection and analysis. दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका सदुपयोग हो सकता है या उपयोग हो सकता है, वह है डाटा कलेक्शन में और एनालिसिस में, आंकड़ों के संकलन में या संग्रहण में और इसके विश्लेषण में। सोशल साइंटिस्ट के रूप में we increasingly use or deal with large and complex data sets from public opinion on social networks to transcripts of interviews and historical archives. हम साक्षात्कार के दौरान जो है अपने उत्तरदाताओं से उत्तर लेते हैं। वह पूर्व निर्धारित प्रश्नों पर, पूर्व निर्धारित उत्तरों पर आधारित हो सकता है। वह आवृत हो सकता है, अनावृत भी हो सकता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। वो क्वांटिटेटिव हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। पब्लिक ओपिनियन भी यूज कर सकते हैं। इवन जो आर्काइव्स हैं, अभिलेखागार हैं, अभिलेख पत्र हैं, उनका भी हम लोग अध्ययन करते हैं। So AI techniques, particularly machine learning and natural language processing, have become invaluable for handling this data. For example, quantitative data, AI-driven statistical tools can detect patterns and relationships. अगर क्वांटिटेटिव डाटा है, यस नो डोंट नो सिंपल क्वेश्चंस आंसर हैं, तो कितने लोगों ने क्या किया, रिग्रेशन एनालिसिस की बात की जाती है, तो हम जो है स्टैटिस्टिकल टूल यूज किए जाते हैं, उसमें हम यूज कर सकते हैं इसको। मशीन लर्निंग मॉडल्स कैन बी ट्रेन टू क्लासिफाई टेक्स्ट और प्रिडिक्ट आउटकम्स। ये मशीन मॉडल्स हैं, इनको हम इस प्रकार का निर्माण कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, इनको प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वह जो हमारे टेक्स्ट हैं, जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उसका वर्गीकरण कर सके, उसको वर्गीकृत कर सके और उसका क्या निष्कर्ष आ रहा है वो बता सके।
ये एक यहाँ पे हमको लाभ देखने को मिलता है. Even advanced AI tools, they are capable of summarizing extensive documents and even coding qualitative data. जो विभिन्न भाषण दिए जाते हैं महानुभावों के द्वारा, राजनीतिकों के द्वारा, जैसे कई बार बैठकें होती हैं. अभी G7 में प्रधानमंत्री जी गए, तो प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया, कितनी बार वो शब्द आया, उस प्रकार की कोडिंग करना. या अगर हमने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू के दौरान जो है हमारे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य है, शोध उद्देश्य है, उसमें वह शब्द कितनी बार बोला उत्तरदाता ने, उसका कोडिंग करना. तो ऐसे मैनुअल करने में बहुत समय लगता था. ये मशीन टूल्स क्या करते हैं, वह उसको कोडिफाई कर सकते हैं. एंड दीज मॉडल्स कैन ऑल्सो असिस्ट इन कंटेंट एक्सट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, pulling out demographic information or key quotations from transcripts. अगर हमारे प्रोफाइल में, क्वेश्चनर के प्रोफाइल में प्रश्नावली के जो हमने जानकारी ली है बैकग्राउंड के बारे में, कि क्या एज है, क्या उनका लिंग है, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, उनका निवास कहाँ पर है, इसके बारे में जो डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय जो हम पृष्ठभूमि लेते हैं, वो उसका जो है उसमें से मूल बातें निकाल सकता क्या AI टूल, और उसको कोडिफाई कर सकता है, उसमें त्रुटिकरण संभव है. इवन another exciting application of AI in social sciences is the use of AI to create simulated data or agent-based model. What do you mean? For example, AI can generate synthetic data sets that mimic real-world data distributions. जैसे अभी प्रयास किया जा रहा था कि शुभांशु शुक्ला और कुछ और अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाए, लेकिन बार बार जो है उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी. तो क्या है, सिमुलेशन. तो ये मॉडल्स बनाकर बता सकते हैं कि ये क्या दिक्कत आ रही है और क्यों वो हम उसको भेज पा रहे हैं उस अंतरिक्ष यान को बार बार. तो ये क्या है, ये जो वास्तविक परिस्थिति है उसको कृत्रिम वातावरण में बनाकर जो है वो हमको परिणाम दे सकता है. वह कितना सटीक होगा ये तो, और कितना रिलायबल होगा वो भविष्य तय करेगा, बट इट कैन प्रोवाइड अस. So it is basically a sort of cooperation. It basically it tries to generate insights into the probable outcomes. क्योंकि सोशल साइंसेस में जब सर्वे किया जा रहा है, एक रिसर्च ग्रुप में हम सर्वेक्षण करते हैं, तो क्या संभावित जो है लोगों का व्यवहार होगा, वो जो क्या सोच रहे हैं उनका क्या परिणाम होगा, इसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन एक पैटर्न पता चल सकता है, इसमें यूज कर सकते हैं. स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑफ AI in academia has been in assisting in writing and publishing. Generative AI writing assistants such as ChatGPT and other tools can help authors and us draft sections of manuscripts, paraphrase for clarity, or correct grammar and syntax. They can act as virtual proofreaders and copy editors, improving language quality, especially for researchers writing in a non-native language. अगर कोई शोधार्थी है या आप में से कुछ है, मुझमें कुछ है, मेरी अंग्रेजी भाषा अच्छी नहीं है, या कोई अन्य भाषा है इसको हम यूज करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं शोधार्थी के रूप में, उस पर हमारी पकड़ नहीं है, कमांड नहीं है, तो हम इसके माध्यम से उसका यूज कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? वो जो व्याकरण है, जो ग्रामर है, फॉर एग्जाम्पल ग्रामरली है, पेपर पाल है, वो हमारे उस लैंग्वेज में, हमारी भाषा में सहयोगी के रूप में काम कर सकता है. AI tools are also being used for reference management. They can format bibliographies, check citation styles, and even suggest additional relevant citations based on the text of manuscript. जो उद्धरण है, जो citations हैं,
उसमें भी कर सकते हैं कि एपीए स्टाइल है, शिकागो स्टाइल है, हार्वर्ड स्टाइल है, क्रॉस चेक करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये एक असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, एक सहयोगी के रूप में काम कर सकता है एआई टूल। Some specialized AI-driven software can scan a draft and recommend papers that author might be have overlooked. कुछ हम लोग रिसर्च पेपर्स होते हैं, लिटरेचर होते हैं, उसको कहता है हमारे काम का नहीं है। अगर हम उसको कमांड दें एआई टूल को, वो स्कैन कर सकता है। आप उसको क्रॉस चेक कर लीजिए और देखिए कि आपके शोध कार्य से वो संबंधित है कि नहीं, ये कर सकता है। इन शॉर्ट, AI can increase the efficiency in handling large-scale data. It can assist us in routine but time-consuming tasks, and even augment the creativity in the form of idea generation. Importantly, these benefits are contingent on using AI responsibly and transparently. जिम्मेदारी पूर्वक और पारदर्शिता अपनाते हुए इसका उपयोग करना है। Now, what are the challenges? ये तो हो गया, उसके कुछ benefits हो गए as a part of literature review and idea generation, data collection and data analysis, simulation modeling, writing and publication assistance. But what are the ethical challenges in AI assisted research? इसमें नैतिकतापूर्ण बात क्या है? यहाँ नैतिकता की बात क्यों है? क्या गलत है, क्या सही है? क्या सब गलत है जो यूज कर रहा है जा रहा है एआई में? क्या सब सही है जो यूज किया जा रहा है? ये जो प्रश्न है, इज इट राइट टू यूज? इट इज प्रॉपर टू यूज? नंबर वन इशू इज द इशू ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्लेजरिज्म। शैक्षिक सत्यनिष्ठा और ये जो प्लेजरिज्म की बात आती है, इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। So one of the foremost ethical issues is the potential for the AI tools to be used in ways that violate academic integrity, particularly through plagiarism or misrepresentation of authorship. इसका लेखक कौन है? Who is the author? रिसर्चर कौन है? शोध किसने किया है? उस टूल ने किया है कि रिसर्चर ने किया है? Because generative AI models can produce fluent text, बड़ा अच्छा लिखा होगा, that may be inserted into research papers or assignments of researchers and students. And if researchers or students present AI generated content as their own original work, it constitutes plagiarism and undermines the principle of intellectual honesty. AI टूल के द्वारा जो भी लिखा जा रहा है या उसका जो जनरेट हो रहा है, वह एक प्रकार से बौद्धिक ईमानदारी से परे है। I was going through an article which was published in Times of India, and it emphasized that using AI to produce academic work is acceptable only if it is properly attributed, otherwise it becomes plagiarism. यदि कोई शोधार्थी या शिक्षक कोई भी एआई का यूज कर रहा है, कोई भी कर रहा हो, चैट जीपीटी, एलिसिट, कनेक्टेड, कोई भी कर रहा हो, परप्लेक्सिटी का किसी का भी कर रहा हो, उसको बताना होगा कि उसने उसका उपयोग किया है, किस लिए किया है, कब किया है, क्यों किया। नहीं तो माना जाएगा चोरी, मानी जाएगी प्लेजरिज्म, माना जाएगा। Unfortunately, early evidence suggests that some authors, researchers have tried to secretly use AI in this way. In one notable incident, a publisher discovered that an author had generated a literature review using an AI tool which not only plagiarized ideas but also produced fictitious citation to non-existent articles. एक प्रकाशक के पास भेजा गया है काम, आजकल तो उनके पास भी देखिए एक खेल चल रहा है, तू डाल डाल हम पात पात, टिट फॉर टैट।
अगर कोई हम रिसर्च का काम कर रहे हैं और भेज रहे हैं पब्लिकेशन के लिए, तो उनके पास भी एडवांस टूल्स आ गए हैं, चाहे वो टर्निटिन हो, चाहे वो डिलीट हो। अभी उस पर भी बात होगी भविष्य में कि भाई जो हमारी वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस है, जो हमारी देशज भाषाएं हैं, क्या उसमें भी क्या आया है, आ रहा है। हो सकता है एडवांस ना हो, लेकिन वो भी होगा। हम इसकी चर्चा करेंगे आपसे हम। तो ये देखा गया कि उसने आइडियाज जनरेट तो कर दिए, लेकिन ऐसे भी आइडियाज जनरेट कर दिए जो है ही नहीं, काल्पनिक है, फिक्टिशियस है। सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हेलुसिनेशन। दिस होता नहीं होता है कि कई बार, या मिराज, कई बार हम लोग सड़क पे गाड़ी चलाते हैं या जा रहे होते हैं, लगता है कि कुछ दिख रहा है कि सड़क जो है वो कहीं टूट रही है या कुछ पानी से दिख रहा है। तो ये जो भ्रम है, ये भ्रम की भ्रमित करता है। So AI language models, when asked to cite sources, often produce official looking references that are entirely fabricated or incorrectly attributed. These artificial hallucinations can be hard to immediately detect because they resemble real citations with plausible author names, general titles, years, etc., but refer to papers that do not exist. बिल्कुल लगेगा कि ये वो एक बड़ा जो सामान्य शोध पत्र होता है या लेखनकार होता है या पुस्तक होती है, वैसे ही दिखेगा। उसी प्रकार का उद्धरण किया गया है, साइटेशन किया गया है, पूरा पब्लिशर का नाम, प्रकाशक का नाम से लिखा है, लेकिन क्रॉस चेक किया जाएगा। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? ये डेटा बेसिस हमारे हैं, JSTOR, MUSE, टेलर, फ्रांसिस तमाम है, या गूगल स्कॉलर किसी में डालेंगे या गूगल सर्च में डालेंगे, वो कह देगा ये है ही नहीं। सब दिखाएगा, ISBN भी दिखाएगा, ISSN भी दिखाएगा, वो DOI भी दिखाएगा, वेब लिंक भी दिखाएगा, लेकिन वो नहीं होगा। So some scholars like Alkazi and McFarlane warn that such hallucinated content in AI generated text has serious implications for scientific writing, as it can mislead others and propagate false information. ये भ्रमित करेगा, ये गलत जानकारी आपको देगा। Ethically, authors have an obligation to verify every reference. Using AI is not an excuse for neglecting this duty. अगर हम कोई भी टूल यूज कर रहे हैं, क्रॉस चेक करिए उसको। ये किताब जो है मोहित भट्टाचार्य ने लिखी है या प्रताप भानु मेहता ने लिखी है, लिखी कि नहीं लिखी है, क्रॉस चेक करिए इन सारे डेटा सोर्सेस से, करना पड़ेगा। बिकॉज ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है जो उसको लिख रहा है या रिसर्च कर रहा है। The consensus emerging is that transparency is key. Using AI for assistance is not unethical per se. ये अनैतिक नहीं है, but failure to disclose AI contribution is. कौन सा AI टूल यूज किया है तो क्यों यूज किया है, कहाँ यूज किया है, कब यूज किया है, कौन सा वर्जन यूज किया है, ये सब बताना चाहिए। To preserve academic integrity, researchers must treat AI as a tool to assist their own thinking and writing, not as a shortcut to generate content that they present as if they created it. अपनी शैक्षिक सच्चरित्रता को बनाए रखते हुए, अक्षुण्ण रखते हुए, शोधार्थी को ये हमेशा रखना पड़ेगा ध्यान कि AI जो है, उसका नाम ही क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वह एक सहयोगी प्रौद्योगिकी साधन है, वो शॉर्टकट नहीं है। और ये जताने का कभी प्रयास नहीं करना है कि आपने खुद उसका निर्माण किया। Second important ethical challenge using AI is data fabrication and accuracy. AI's capacity to generate highly realistic content extend beyond the text and into data, which raises alarms about the fabrication or manipulation of research evidence. AI tools can produce synthetic data, images, or statistical outputs that look credible
which unscrupulous individuals might use to pad results or support desired conclusions. The ethical principle of honesty in reporting research requires that nothing fictitious is presented as factual. जो fictitious है, जो काल्पनिक है, वो तथ्यात्मक कभी नहीं हो सकता. But AI doesn't change that principle. Even it offers new ways to violate it. वो आपको तरीके बता देगा कैसे आपको उसका उल्लंघन करना. AI tools must never be used to manufacture data or fake references. I will give you an example. In one of the scientific publications, a mysterious term came into usage: vegetative electron microscopy. And this term was used in many more than 12 research papers by different researchers. Experts found it nonsensical. Why? Investigators traced it to a single mistranslation by AI tool, and old research paper described the electron microscopy of vegetative structures, referring to plant tissues. And instead of using this full sentence, the AI tool used another fabricated sentence, vegetative electron microscopy, which was non-existent. ये प्लांट टिश्यू के बारे में रिफर करने के लिए पूरे सेंटेंस को ना उपयोग करके एआई ने क्या किया, अपने मनगढ़ंत भाषा में उसका बना दिया, एक अलग से एक टर्म बना दिया, नया कॉन्सेप्ट बना दिया. और वही जो शोधार्थी थे उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ा और अपने शोध पत्रों में उसको कोड कर दिया एज इट इज. तो विशेषज्ञ जो थे उन्होंने कहा कि ये कौन सा नया टर्म आ गया भाई, ये कौन सी शोध हो गई. तो उन्होंने पकड़ा तो उससे पाया कि ये तो एक पुराना पेपर था, उसमें ये जो है प्लांट टिश्यू के संदर्भ में यूज किया गया था, एक पौधे के संदर्भ में, और एआई ने क्या किया, उसको अपने मन ढंग से जनरेट कर दिया. So this case starkly demonstrates how uncritical reliance on AI-generated text can introduce fabricated scientific concepts. Another example is come from a controlled experiment. एक experiment किया गया, एक नियंत्रित प्रयोग किया गया. क्या किया गया? Where researchers deliberately used AI to fabricate entire research papers. A set of research papers बनाया गया. शोध पत्रों का एक संकलन, एक संग्रह बनाया गया. कैसे बनाया गया? इन 2023 two authors, दो लेखकों ने क्या किया, रिसर्चर ने क्या किया, they employed an AI system to generate 288 fake papers. एक दो नहीं, 288 जो है फेक पेपर उन्होंने बनाए. किसमें? इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, कंप्लीट विद टेक्स्ट, टेबल्स एंड ग्राफ्स टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ convincingly AI can mimic academic writing. AI can mimic academic writing. इसको करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि क्या AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जैसे कि रिसर्च स्कॉलर्स या टीचर्स जो है रिसर्च करते हैं, वैसे वो रिसर्च करके लिखने के लिए वो उपयुक्त है कि नहीं है. तो 288 शोध पत्र ने तैयार किए उस एआई टूल के माध्यम से, और उसको जो है जमा भी कर दिया गया. These fake studies were submitted journals. और फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड क्लियर कर लिया. लास्ट राउंड में क्या होगा, पकड़े गए. The last round they were able to catch hold of the fake articles. तो क्रॉस चेक किया गया. सारे जो रिव्यूअर्स थे, जो समीक्षा की जिन्होंने, जो पीयर रिव्यू किया गया, उसमें पाया गया कि ये तो सब फेक है. कैसे? The ease of fabricating data with AI
also intersects with the issue of result of accuracy, सटीकता. AI generated text or analysis may contain subtle inaccuracies or illogical outputs that a researcher might overlook. Hallucination करते भ्रमित करता है वो. One study of AI in computer programming found that over half of AI generated answers contain errors. And disturbingly, human users fail to catch those errors 39%. कई बार क्या होता है कि मनुष्य का मानव मन जो होता है, our cognition abilities always have some limitations. हमारा चिंतन, हमारे सोचने की क्षमता जो है उसकी सीमा होती है, उसी का फायदा उठा के, क्योंकि बिलियंस ऑफ पेपर्स हैं, खरबों में शोध पत्र होते हैं, सबको पढ़ना हम लोग के संभव नहीं होता है, लेकिन ये जो मशीन मॉडल्स हैं वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. तो ये डाटा फैब्रिकेशन और एक्यूरेसी जो है ये इशू है. थर्ड एन इंपॉर्टेंट एथिकल इशू ऑफ यूजिंग एआई इज बायसनेस एंड फेयरनेस. Bias in AI systems is a well-documented phenomenon. AI models learn from training data. AI जो मॉडल होते हैं वह खुद जो है अपने आप को ट्रेन करते हैं किस प्रकार का, जो डेटा पहले से उपलब्ध है, जो आंकड़े पहले से उपलब्ध हैं. And if those data contain social or historical biases, the models can reproduce or even amplify those biases. For example, ये कैसे जो है पक्षपात कर सकता है एआई, एक एग्जांपल में देख के समझाने का प्रयास करूंगा आपको. फॉर एग्जांपल, सपोज इन सोशियोलॉजी a sociologist uses an AI text analysis tool to categorize job descriptions as being male oriented और female oriented. कि कौन से कार्य हैं वह पुरुष प्रधान है और महिला प्रधान है, ये अध्ययन करना चाहता है एक समाज शास्त्री. If the AI was trained on a data set where certain gender stereotypes were prevalent, perhaps associating men with leadership and women with support roles, the model might unfairly label new job descriptions in biased way, reinforcing gender stereotypes rather than objectively analyzing the content. तो अगर शोध पत्रों में पहले से या डेटा जो पहले से अवेलेबल है, जो आंकड़े पहले से अवेलेबल है, वो बता रहे हैं कि नेतृत्व क्षमता जो है पुरुषों में अधिक है और महिलाएं जो है वो उनके समर्थक के रूप में ज्यादा बेहतर से काम कर सकती हैं, क्योंकि उनमें ये शारीरिक मानसिक जो है सीमाएं हैं. तो वो क्या करेगा, एआई टूल जो है उसका दोहराव करेगा और उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ये डाटा पहले से उपलब्ध है, उसी पर वो ध्यान दे रहा है और उसी को वो क्या कर रहा है, उसका प्रिडिक्शन कर रहा है. ये एक बायसनेस है, ये देखने को मिलेगी. दिस वुड कॉम्प्रोमाइज द रिसर्च बाय इंजेक्टिंग द एआई's bias into the results. Similarly, AI systems used to analyze images, for instance, to detect emotions or behaviors from photographs. छवियों का जो फोटो खींची जा रही है उसमें एआई यूज किया जा रहा है, और उसमें भी क्या देखने को मिला है कि रेशियल बायस देखने को मिल रहा है, नस्लीय भेदभाव भी हो रहा है. जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जितने भी जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं जो बाजार में लगाए जा रहे हैं, शहरों में लगाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ज्वेलरी के, तो जो मॉडल होती हैं वो ज्यादातर क्या देखते हैं कि वो श्वेत वर्ण की दिखाते हैं मॉडल्स को, और श्वेत बहुत दिखाते, क्यों, और वो कैसे बनती हैं, ज्यादातर बनाया किस तरह है, कंप्यूटर से बना रहे हैं, और आजकल एआई का यूज किया जा रहा है. अभी एक बहुत बड़ी कंपनी है ज्वेलरी की, तनिष्क के नाम सुना होगा आपने, इस पर कोर्ट में मामला भी चला गया था, बड़ा सोशल मीडिया में हंगामा हुआ था कि ये फलाना ही वर्ण के लोगों को दिखाते हैं, बाकी क्यों नहीं दिखाते हैं, रेशियल बाइस हो रहा है. तो these tools can be used, और हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स आजकल देख रहे हैं, जो इमोजीज आ गए हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाए जा रहे हैं.
तो यहाँ एथनिक बायस भी देखने को मिल सकता है आपको, नस्लीय भेदभाव देखने को मिल सकता है। Why? Due to imbalanced training data. The ethical principle at stake is justice. एक और नैतिक पूर्ण जो है एक सिद्धांत है वो है न्याय। Ethical principle at stake is justice and equity research. Researcher must ensure that their use of AI does not inadvertently cause harm to any group or distort the social reality and the study. जो भी AI हम टूल यूज कर रहे हैं वह किसी प्रकार से किसी भी सामाजिक वर्ग विशेष के प्रति पक्षपात नहीं करेगा, फेयरनेस होना चाहिए, उसमें वो न्यायोचित ढंग से होना चाहिए। Because presence of such a bias is not just a technical flaw, it can lead to ethically problematic research conclusions. For instance, if marginalized communities are mischaracterized because an AI model does not represent them well, then what will happen? जो सीमांत लोग हैं, अगर सीमांत लोगों की स्थिति जो है और बेकार ढंग से प्रस्तुत की जाएगी एआई का उपयोग करके, तो क्या होगा? A biased AI might yield results that another researcher using a different method would not get, raising questions about reliability. अगर दूसरे पद्धति से किया जा रहा है, दूसरे विधि से किया जा रहा है, तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्वेश्चन मार्क लगेगा। Another aspect of fairness concern is who has access to AI. Accessibility. कौन एक्सेस कर रहा है, किसके लिए वह है, किसके पहुंच में है? Already in India, country like India and lot many developing countries, there is an issue of digital divide. पहले से हम लोग जो है एक मुद्दे पर दंश झेल रहे हैं कि सबके पास जो है इंटरनेट नहीं है, सबके पास जो है इस सुविधा नहीं है। अब एआई आ गया है तो क्या होगा? कटिंग एज एआई टूल्स स्पेशली लार्ज मॉडल्स कैन बी एक्सपेंसिव टू लाइसेंस और रिक्वायर सिग्निफिकेंट कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। Wealthier institutions or researchers may have means to utilize these, while others do not, potentially creating inequity in who can conduct certain kinds of research. जिनके पास फेलोशिप नहीं है, जिनके साथ स्कॉलरशिप नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है और ओपन एआई टूल्स जो है वो लिमिटेड हैं, तो वो कैसे एक्सेस करेंगे? ये भी तो उनके साथ जो है इनजस्टिस होगा, अन्याय होगा। अगर हमारे बीएचयू या कोई यूनिवर्सिटी उसको सब्सक्राइब नहीं करती है तो हम क्या यूज कर पाएंगे? वो हमारी पहुंच के बाहर है। इट इज बियॉन्ड माय एक्सेस। इट इज नॉट अफोर्डेबल। रिमेंबर, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। वो प्राप्त नहीं होना चाहिए, प्राप्त में नहीं है। आई डिजायर इट बट आई कैनॉट अफोर्ड इट। सो AI could increase the advantage of wealthier individuals and institutions. Resources, जिनके पास संसाधन है वो ज्यादा उस पर निर्भर करने लगेंगे। Ensuring fair access to AI tools, possibly through open source models or institutional support, is part of broader ethics and equity conversation in academia. Fourth important challenge and issue is प्राइवेसी एंड कंसेंट। निजता और सहमति की बात है। सोशल साइंस रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा अबाउट पीपल, देयर बिहेवियर्स, ओपिनियंस और पर्सनल इंफॉर्मेशन। द यूज ऑफ एआई इन हैंडलिंग सच डेटा रेजेस कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब भी हम सर्वेक्षण करते हैं या साक्षात्कार लेते हैं अथवा प्रश्नावली के माध्यम से उत्तरदाताओं से
उत्तर लेने का प्रयास चेष्टा करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये भी आपका जो भी सूचना होगी वो गोपनीय रखी जाएगी और ये सिर्फ शोध कार्य के लिए है. On the other hand, when researchers use AI tools, especially cloud-based services, AI tools जो होते हैं वो लोकल नहीं है ज्यादातर, वो क्लाउड बेस पे है, उनका सर्वर कहीं और है. हो सकता है चैट जीपीटी का सर्वर जो है अमेरिका में है या इंग्लैंड में, भारत में नहीं है. And to analyze data like interview transcripts, social media posts, or survey responses, they need to be cautious about data confidentiality. For instance, uploading interview transcripts containing personal identifiers or sensitive details to an AI platform might violate the confidentiality assured to participants if the platform stores or uses the data. हमने वादा किया है शोधार्थी के रूप में, मैंने वादा किया है, एक प्रोजेक्ट में कंप्लीट कर चुका हूं, 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं. हमने कहा जब भी सर्वे करते हैं कि आप जो भी जानकारी दे रहे हैं गोपनीय रखें. लेकिन यदि मैं कोई एआई टूल यूज करता हूं कोई भी, और उनकी जो गोपनीय सूचना है, उनका नाम, उनका टेलीफोन नंबर, उनकी आयु, उनका लिंग, उनका वेतन, उनकी डिग्री जानता हूं, तो क्या गारंटी है कि वो उसको सेव नहीं करेगा, उसका मिसयूज नहीं करेगा? कौन? एआई टूल. हमने जिससे लिया डाटा वो तो उस पर दिया कि हम इसको गोपनीय रखेंगे. लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि चलो भाई अब 300 लोगों का इकट्ठा कर लिया है, अब मैं उससे आंसर निकाल के अपना एनालिसिस करता हूं. So ethical research mandates that we protect participants' privacy. Researchers must scrutinize the privacy policies of AI tools. कोई भी AI टूल यूज करना है तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को देखिए, निजता नीति क्या कहती है. And preferably use ones that allow local processing or guaranteed non-retention of data. या तो वो एक गारंटी दे कि वो डाटा रिटेन नहीं करेंगे जब तक कि वो रिसर्च का एनालिसिस ना करके हमको आउटपुट ना दे दे, या वो लोकलाइज्ड है, वो कहीं और सर्वर नहीं है. Another dimension is the AI trainings data. AI को कैसे ट्रेन किया गया है? Many models, AI models, are trained on massive internet data sets that likely include content from individuals who never explicitly consented to use such use. हो सकता है कई लोगों ने कंसेंट नहीं दी हो कि हमें यूज करना है AI, लेकिन वो यूज करने के लिए आपने AI का यूज करना शुरू कर दिया. So what will happen? It will create a kind of unethical environment. How? The model's capabilities are partly built on uncompensated, unconsented use of countless people's writings. मैंने तो नहीं कहा था कि मेरा जो राइटिंग है आप उसमें AI में डालिए, लेकिन मेरा बिना पूछे जो है वो उसको साइट कर लिया गया और उसको सर्वर में डाल दिया गया और लोग उसका यूज कर रहे हैं. तो कॉपीराइट वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ? और हमने तो कोई हमको बताया भी नहीं गया. मान लीजिए आप रिसर्च कर रहे हैं और कहते हैं कि सर हमारा ये आप सर्वे कर दीजिए या क्वेश्चन भर दीजिए, तो हमने इसलिए भरा था कि आप उसको रिसर्च के करेंगे, लेकिन आपने क्या किया, बिना उसको बताए या यूज बताए हुए आपने किसी एआई टूल में डाल दिया. तो दिस इज अनएथिकल. So ethically, participants should be informed, at least in broad terms, about how their data will be processed. क्या आप खुद स्वयं करेंगे, AI से करेंगे, कौन सा करेंगे, बताना चाहिए. Even AI can assist in anonymization too. For instance, automatically removing names or faces. उसमें कमांड दे सकते हैं कि आप बिना नाम के, बिना उनकी निजी जानकारी के, आप हमारे जो उत्तरदाता हैं उनके उत्तरदाताओं का उत्तर जो है उसका विश्लेषण करें, अनाम ढंग से करें.
Fifth unethical issue is the issue of authorship and attribution. लेखक कौन है? Who is the writer? Who is the researcher? AI? The machine? The machine model? ChatGPT? Elicit? Perplexity? Paperpal? Grammarly? या अभिनव शर्मा? कौन लेखक है? Traditional definitions of authorship in academic publishing rely on the notion of creative intellectual contributions and the ability to take responsibility for the work. अगर हमारे नाम लगा है किसी भी शोध कार्य के किताब के लिए, कोई भी लेखनी है, तो हमारी जिम्मेदारी है. इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अभिनव शर्मा. Since AI lacks legal personhood and moral agency, अगर हमको लीगल एंटिटी की बात करनी है, अगर हमारे खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी तो किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? चैट जीपीटी के खिलाफ कार्रवाई होगी? कार्रवाई होगी अभिनव शर्मा के. Since, for instance, Nature and Science, very well known journals, have issued ground rules that while authors must disclose any use of AI tools, those tools do not qualify for authorship. I again quote, AI tools cannot be called for authorship. The International Committee of Medical Journal Ethics Editors, IJMJE, एक एसोसिएशन है, International Committee of Medical Journal Editors, updated its guidelines in 2023 to clarify that authorship implies responsibility and accountability which only humans can fulfill. सिर्फ इंसानों को, मनुष्यों को दी गई जिम्मेदारी, मशीनों को नहीं. Hence, AI tools cannot be authors, and any role of AI in writing must be acknowledged in the manuscript instead. Authorship: if a researcher uses an AI tool to scientifically generate text, ideas, or translations in a paper, how should that be acknowledged? एक इशू है. अगर मैं कोई AI टूल का उपयोग करता हूँ, साधन का उपयोग करता हूँ, तो उसका हम कैसे उपयोग, कैसे बताएं, उसका उद्धरण कैसे करें? The emerging best practice is to include a clear acknowledgement or method statement describing the use of AI. For example, a researcher might write paragraphs 2 to 3 of the literature review were drafted with assistance of ChatGPT and then extensively edited by the authors or such and such use. Ethically using AI should not amount to delegating the entire intellectual labor. वो असिस्टेंट है, ये नहीं कि पूरा उस पर जिम्मेदारी डाल दी गई. Another issue is the issue of accountability and transparency. Accountability in research refers to the obligation of researchers to answer for the integrity of their work to peers, to public, and to their own reputations. जवाबदेहिता ये कहती है, ये एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है किसका? शोधार्थी का, कि उसको उत्तर देना है किसको? अपने जो साथ के जो रिसर्चर हैं उनको, जनता को, जिनसे उनने जानकारी ली, उनको अपने खुद की प्रतिष्ठा के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए, साख के लिए, कि उन्होंने इस साधन का उपयोग किया. How AI was used and why it was used must be known. AI cannot be treated as scapegoat. AI के आवरण में या AI के आड़ में हम काम नहीं कर सकते हैं. Now, let me highlight, because of paucity of time, what are the global ethical frameworks and guidelines. विश्व भर में जो है काम बहुत चल रहा है,
तो एआई का यूज हो रहा है। तो एआई के लिए कुछ उन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, कुछ दिशा निर्देश बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज द यूनेस्को recommendation on the ethics of artificial intelligence 2021. It has been endorsed by 193 member states of UNESCO. It affirms that AI development and use should be grounded in respect for human rights, dignity, and the environmental well-being. The recommendation on the ethics of artificial intelligence 2021 of UNESCO lays out core principles such as transparency, fairness, human oversight, accountability, privacy and sustainability. तो यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष अभिकरण है, उसने कुछ प्रमुख सिद्धांत बताए हैं अपने 2021 के उस दस्तावेज में, जिसको 193 सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकार किया। क्या है? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, फेयरनेस, ह्यूमन ओवरसाइट, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता, प्राइवेसी, निजता, सस्टेनेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपेरेंसी एंड ह्यूमन ओवरसाइट echo the need for researchers to fully disclose AI use and ensure human judgment in interpreting AI outputs. While fairness and non-discrimination underscore the importance of avoiding bias in research tools. While the UNESCO document is not legally binding, it serves as a moral and policy guidepost. वैधानिक रूप से, विधिक रूप से ये बाधित नहीं करता है सदस्य राष्ट्रों को, लेकिन ये मॉरली एक पॉलिसी गाइडलाइन के रूप में काम कर सकता है। Another widely cited framework is the OECD AI Principles 2019, Organization for Economic Cooperation and Development, जो विकसित देशों का बनाया गया है, which were also adopted by G20. They include principles like inclusive growth, transparency, robustness, and accountability. जो भी AI का यूज कर रहा है वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी से करना। They are guidelines in scholarly publishing. अगर हम पब्लिशिंग की बात करें, प्रकाशन क्षेत्र की बात करें, एकेडमिक जगत की बात करें, द कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स COPE released a discussion document in 2023 addressing AI in decision making and authorship. The Committee on Publication Ethics एक समिति बनी हुई है प्रकाशन में नैतिकता के लिए, जिसने 2023 में एक दस्तावेज निकाला। COPE's guidance emphasizes that transparency about AI use in manuscripts is crucial for editors and peer reviewers to their job properly. Accountability for the content lies with the authors. कुछ भी अगर गलत हुआ, प्लेजरिज्म हुआ, चोरी हुई, फेक है, मिस इन्फॉर्मेशन है, तो लेखक की जिम्मेदारी होगी, रिसर्चर की जिम्मेदारी होगी। एआई टूल है। Publishers like Nature and Elsevier have published editorial outlinings, ground rules. As January 2023, Nature editorial, for example, titled "Tools such as ChatGPT threaten transparent science." Here are our ground rules for the use. Explicitly states that no text should be copied from AI without proper citation, and that AI tools cannot be credited as authors. जो भी AI टूल का आप उपयोग करेंगे उसको बताइए, उससे आपने क्या कहा, कैसे उपयोग किया, उसको बताना होगा। वह लेखक की उपाधि श्रेणी में नहीं आ सकता। ठीक है। Similarly, publishers like Taylor and Francis and Sage have provided more nuanced guidelines along AI tools and supportive roles if used responsibly. Sage's official guidelines 2023 for authors mentioned that generative AI can be used to improve
writing clarity or grammar. But the authors must then thoroughly check and take responsibility for content, and they must indicate in the acknowledgements or methods that AI was used. सीधे साफ कहा है कि ग्रामर के लिए, व्याकरण के लिए आप यूज कर सकते हैं, अपनी लेखनी में उसका बेहतर ढंग से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन बताना होगा अपने आभार में कि आपने किस टूल का यूज किया, एआई टूल का, और कहाँ यूज किया, कौन सा वर्जन यूज किया आपने. Now, what about university? What about the institutions, academic institutions? Academia at the institutional level is also responding. Universities are developing policies for their communities regarding AI. If you talk of world over practices, top universities like Harvard and Massachusetts Institute of Technology, MIT, released guidelines in early 2023 for their campus communities. Harvard's guidance, for instance, said that generative AI could be used for certain tasks with caution, but any use should be disclosed to instructors or in the work itself. These initial guidelines serve as prototypes that other universities are customizing. If we talk of India, there is recognition at the high levels of importance of AI, but specific regulations for AI in academia are still developing. हमारे देश में अभी भी यूनिवर्सिटीज में, विश्वविद्यालयों में ये अभी एक उच्च विकास के चरण में है, ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है. The government of India's think tank Niti Aayog released a strategy paper, National Strategy for Artificial Intelligence for AI for All in 2018, and a follow-up discussion, Responsible AI for All in 2021. तो नीति आयोग ने शुरुआत ली है, अगुवाई की है, और 2018 में एक रणनीतिक जो है पत्र निकाला गया, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई फॉर ऑल, और उसके फॉलोअप में निकाला गया रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल इन 2021. These documents enumerate key ethical principles much in line with global norms: fairness, accountability and transparency. FAT, वो फैट नहीं, ये फैट क्या है? फेयरनेस, जो इक्विटेबल हो, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी की जो बात आ रही वो है. As of 2025, the University Grants Commission, which sets standards for universities, had not yet issued a dedicated policy or circular on the use of AI in research and PhD work. This regulatory gap has been pointed out by academics and commentators. Currently, Indian universities rely on existing plagiarism regulations of UGC's 2018 Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism regulations, which do not explicitly mention AI. अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से ऐसा कोई एक दिशा निर्देश के रूप में अभी प्राप्त नहीं हुआ है. अभी वो तैयार हो रहा है मसौदा, हो सकता है जल्द तैयार होकर फिर लागू होगा. On the positive side, India's National Education Policy 2020 encourages the use of technology, including AI, in education and research, but with an emphasis on ethics and critical thinking. जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वह प्रोत्साहित करती है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है शैक्षिक जगत में, शोध जगत में, लेकिन साथ साथ में क्या है, वो नैतिकपूर्ण ढंग से हो और वो बिना आलोचना के नहीं करना है. अपनी बात को मैं समाप्त करने के पहले कुछ सुझाव देना चाहूंगा. सुझाव ये है कि there should be academic institutions should not wait for national bodies and
They can lead by creating their own guidelines for AI use in research and coursework. These guidelines should be developed with input from faculty across disciplines, including those familiar with AI and those focused on ethics. अब हम लोग ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं कि एआई के लिए हमारे पास क्या दिशा निर्देश होना चाहिए। हम लोग विभिन्न विश्वविद्यालय जो है मिलजुल कर विभिन्न विषय को मिलजुल कर विभाग स्तर पर विश्वविद्यालय स्तर पर अपने अपने जो है कुछ हम लोग मानक बनाए। Bodies like UGC in India should update their academic integrity and plagiarism regulations to include AI-related clauses. Academic journals, including the Indian Journal of Public Administration, Indian Journal of Political Science, should implement or continue the practice of requiring an AI use declaration submissions. जो महत्वपूर्ण शोध पत्रिकाएं हैं जो भारतीय संदर्भ में उपयोग में की जा रही हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, उनके संपादकीय में होना चाहिए। जो संपादकीय मंडल है, एडिटोरियल बोर्ड है, उसको होना चाहिए कि एआई टूल का यूज होगा तो उसका उद्धरण होगा, लिखा जाएगा। Funding agencies and academic awards can play a role in steering ethical AI use. For instance, grant proposals could be required to discuss if AI will be used in research and how ethical issues will be managed. At a broader scale, integrate AI ethics into the education of researchers is vital. This means including modules on AI ethics in PhD programs. जो कोर्स वर्क है, PhD कोर्स वर्क है, MA लेवल पर, BA लेवल पर अगर कोई रिसर्च मेथड पढ़ाया जा रहा है कोर्स में, तो उसमें ये होना चाहिए। इवन जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है FDP, ओरिएंटेशन कोर्सेस होते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेस होते हैं, 1 वीक कोर्सेस होते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स चलते हैं आईसीएस स्पॉन्सर, तो ये होना चाहिए उसमें। International bodies like UNESCO, OECD, and professional associations, just like International Political Science Association, International Institute of Administrative Sciences, Indian Institute of Public Administration, Indian Political Science Association, Indian Public Administration Association. These associations can facilitate the creation of standards of AI in research. The policy should encourage positive use of AI in research. Not all policing, some is enabling. The ethical usage of AI in academic research, in social sciences especially, as any field, boils down to upholding traditional scholarly values in new context. Honesty, integrity, rigor, fairness, and responsibility remain our North Stars. ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, मेहनत, लाइटेड ढंग से उपयोग करना, जिम्मेदारी पूर्ण से ध्यान करना, ये हमारे ध्रुव तारे हैं, इस पर ध्यान रखना। The path forward is clear. Engage with AI, but do so ethically. Thank you. Thank you so much, sir. So I would like to request all participants, if you have any query, doubts, and questions, so you can ask directly to respected Abhinav sir, or you can write your questions and query to the chat box. Yes, Anand Kumar ji. Yes, Dr. Anand Kumar ji, you want to ask something?
आनंद कुमार जी बोलिए। कोई दिक्कत नहीं भाई, बोलेंगे तो पता चलेगा कि आप लोग क्या समझे हैं और मैं क्या समझने का प्रयास किया तो कुछ फलीभूत हुआ कि नहीं हुआ। प्लीज गो अहेड। सर एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है, अनुष्का मिश्रा ने पूछा है, व्हाट हैज बीन द टेक ऑफ द यूजीसी ऑन द यूज ऑफ एआई particularly in the research degrees, and has UGC come up with any regulation for the same? I have already explained this thing in my presentation Yes. कि इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में अभी हमारे पास सिर्फ नीति आयोग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं एंड ऋषिकांत कमीशन स्टिल ट्राइंग टू इवॉल्व अ गाइडलाइन, डेवलप अ गाइडलाइन। अभी आपने देखा होगा कि जो है 2018 के बाद अब नई टीचिंग गाइडलाइंस आने वाली है। 2025 का ड्राफ्ट आया था, वो पाइपलाइन में है। ठीक उसी प्रकार से, लेकिन हमने कहा कि आपको ना कि जर्नल्स के जो शोध पत्रिकाएं हैं उनके, फॉर एग्जाम्पल सेज पब्लिकेशंस के जर्नल्स हैं, टेलर फ्रांसिस के भी जो जर्नल्स हैं, उनका जो एडिटोरियल बोर्ड है, जो एडिटर है, उन्होंने खुद अपनी गाइडलाइंस बना रखी है। आप उनके पोर्टल में जाएंगे, गो टू द पोर्टल, वहां लिखा हुआ है ना। अगर हमारे पास नहीं है तब भी जो है मैंने कहा कि ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी हैज ऑलवेज बीन देयर इन द एकेडमिया। ये जो है, ये जो सच्चरित्रता है, सत्यनिष्ठा है शैक्षिक जगत में, ईमानदारी है, जो मेरा नहीं है मैं उसको अपना क्यों कहूं। पिछले 1 साल से मैं भी एआई का उपयोग कर रहा हूं। इवन जो ये लिटरेचर रिव्यू मैंने किया तो मैंने भी कुछ यूज किए, लेकिन क्रॉस चेक करना पड़ता है। वी हैव टू वेरीफाई द एक्यूरेसी, द रिलायबिलिटी, द वैलिडिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल। जो भी मैं कह रहा हूं वो मेरी बात है, वो हमने उसको समझा कैसे है। एक किताब, एक पुस्तक जरूर पढ़िएगा आप लोग, जो बड़ा अच्छा बताया है कि, और मैं शेयर भी करूंगा, इसकी सॉफ्ट कॉपी है मेरे पास। अब तो अलाउड नहीं है, आजकल तो बहुत सारी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो जाती है, पायरेटेड कॉपी हो जाती हैं, कि मशीन मेन लेवल रूल मैन, मशीन जो है वो मानव पर जो है कभी राज नहीं करेगी। अभी जो एक निष्कर्ष आया है, क्यों नहीं करेगी? बिकॉज आवर जो ब्रेन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन कंपेरिजन टू दी मशीन मॉडल्स। कितना भी डेवलप कर लीजिए, अभी हम उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। और अगर हम रिसर्च की बात करते हैं, एज अ सोशल साइंटिस्ट वी आर रिसर्चिंग, अ ह्यूमन बीइंग इज रिसर्चिंग अनदर ह्यूमन बीइंग, तो उसमें मशीन जो है एक असिस्टेंट के रूप में काम करेगा। इसको ध्यान रखना है आपको। एनी अदर क्वेश्चन, क्वेरी, कोई और बताइए, किसी का कमेंट हो, स्वागत है। सर नमस्कार सर। हाँ बताइए। नमस्ते। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला से, सेंटर फॉर दीनदयाल, नमस्ते जी। सेंटर फॉर दीनदयाल उपाध्याय स्टडी से। जी बताइए सर। बहुत अच्छे सरल शब्दों में आपने एआई का उपयोग करना, कैसे करना, करते समय किन बातों का ध्यान रखना पर बहुत अच्छी जानकारी दी है। एक जिज्ञासा थी जी, कि जैसे मान लीजिए कोई शोध पत्र हम तैयार करते हैं जी, कहीं पर जरूरत पड़ती है चैट जीपीटी की या एआई का उपयोग करते हैं और हम थोड़ा सा उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या साइट करते समय हम ये लिख सकते हैं कि आंशिक रूप से चैट जीपीटी का उपयोग किया गया है या एआई का उपयोग किया गया है? क्या ऐसा हम साइट कर दें तो वैलिड हो जाएगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यही है आपका, देखिए याद रखिए रिस्पॉन्सिबल एआई का जमाना है जी। मैं यही कह रहा हूं आपसे ना, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। आप उसका तरीका क्या है? अभी कोई गाइडलाइन देखने को नहीं मिल रही है, गाइडलाइन है भी नहीं भी। अब क्या कह रही है गाइडलाइन कि आपने कुछ
लिटरेचर रिव्यू में आपने यूज किया है, जी जी कौन सा मॉडल यूज किया है, उसका कौन सा वर्जन है, कौन कौन से पैराग्राफ में यूज किया है, कितना यूज किया है, ये चीजें आपको स्पष्ट लिखनी पड़ेंगी, चाहे वो आभारी में क्यों ना हो, लास्ट में एक्नॉलेजमेंट में। नहीं सर, ये हाँ। केवल इतना लिखने मात्र से काम नहीं चलेगा क्या कि चैट जीपीटी का उपयोग आंशिक रूप से उपयोग किया गया है? मैंने आंशिक रूप से कहाँ किया, किसमें किया, ये बताना पड़ेगा ना आपको। हाँ यही तो समस्या हो जाती है। हाँ, एथिक्स में और एथिक्स में क्या, एथिक्स शब्द कहाँ से आया, इथॉस। इथॉस मीन्स परिवेश। हमको ऐसा परिवेश बनाना है जहां पर सत्यता अधिक हो, असत्यता कम हो। ये ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से सत्यता होगी, लेकिन एक एज अ रिसर्चर, एज अ स्कॉलर, आई हैव माय ओन आइडियाज, बट व्हाइल जनरेटिंग माय आइडियाज आई हैव यूज्ड सम टूल, but that tool is simply an instrument which cannot be held for something which is irresponsible. Responsibility lies with me. जिम्मेदारी मेरी है, वो तो साधन है। अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ त्रुटि होती है, जैसे आज के डेट में क्या हो रहा है कि 270 लोग मर गए, एक हादसा हुआ अहमदाबाद में हुआ, वो मशीन गिरी, मशीन थी ना हवाई जहाज, जी जी। अब वो ब्लैक बॉक्स और ये जो भी डाटा रिकॉर्डर पकड़ा लिया गया, उसका हो रहा है कि ये ह्यूमन एरर था कि मशीन एरर था। सारा तो बहन उसी पे है। तो मेन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। अगर हमने ये मेंशन नहीं किया कि हमने एआई का यूज किया, कितना यूज किया, अब आपने कहा आंशिक यूज किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर सर्जरी करता है, आजकल रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है कि नहीं? जी जी जी, हो रही है। और अगर कुछ हादसा हो जाता है, समथिंग अनटूवर्ड हैपेंस, हम किसको मांगेंगे जिम्मेदार? आप समझ रहे हैं? हम तो पूछेंगे भाई, हम डॉक्टर ने हमारी जो है मरीज को जो है डिस्टर्ब कर दिया, खराब कर दिया, उसकी सर्जरी खराब कर दी, हम तो रोबोट को नहीं पकड़ेंगे ना। आप बात समझ रहे हैं? सिमिलरली एज रिसर्चर हमने उससे कहा, जो हमारा उत्तरदाता है, कि आपकी जो जानकारी है गोपनीय रखी जाएगी, लेकिन अपनी आसानी के लिए, सुविधा के लिए हमने क्या किया, उसको चैट जीपीटी में डाल दिया, किसी और सॉफ्टवेयर में डाल दिया, ताकि वो प्रोसेस कर सके जल्दी से, हमारा काम आसान हो जाए। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसकी जो निजी जानकारी थी, उसका पता, उसका टेलीफोन नंबर और भी डाटा था, बिना जो है उससे पूछे बस हमारा उसमें डाल दिया सर्वर में, और वो यूज कर रहा है, कोई भी चाहे करे। तो अगर कोई दुरुपयोग करता है तो हम किससे पूछेंगे ये जानकारी किसके पास कैसे पहुंची? उपयोगकर्ता से। जैसे आधार डाटा लीक होने का खुलासा हुआ तो क्यों हमने पूछा, है ना भाई? बहुत चीजें हैं आपकी ना। तो सीधी सी बात है उदय पाल सिंह जी कि हम मना नहीं कर रहे हैं, हम खुद यूज कर रहे हैं एआई टूल, लेकिन बताना पड़ेगा कि कैसे यूज किया, कहाँ यूज किया, वो आंशिक कहाँ यूज किया, कौन सा वर्जन यूज किया। चैट जीपीटी 4 यूज किया, मिनी यूज किया, चैट जीपीटी 4 प्लस यूज किया, कौन सा वर्जन यूज किया, कहाँ यूज किया, ये बताना पड़ेगा। ये है, यही एथिक्स है। हाँ ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, बहुत सुंदर जानकारी दी। थैंक यू सर। और बताएं। Thank you, sir. Professor Abhinav, sir. We have Professor Mamo Mochi from the South Africa, and he is also editor of the Journal of Science, Technology, Innovation and Development, Taylor and Francis, and also director of Johannesburg University, and he is also the member of the COPE committee, as you have mentioned in your lecture. So he will give his comment on the session. So I would like to invite to Professor Mamo for the brief comment. Thank you very much. I really appreciate you, Dr. Vikash, for really running this Indian Research Association very much. Very good. And also the various active and dynamic conferences
and seminars you are running is very good. And we are going to run a few more seminars. And then we are including also, we want to link India, China on the education research domain very much. It's very, very important. In the ancient time, India used to be called Eastern Ethiopia. I hope you should read it, maybe Google it and find out how an Indian ancient thinker said that this was what it was. So we are all one people, so we need to work together. So we have also created this South-South global, transformative innovation system, which is linked to the one that Dr. Vikash and your team are doing. So I really appreciate you for all that. I think the digital time we're in now, we must not do it in the way we went with the first industrial revolution, the second industrial revolution, third industrial revolution, and the fourth industrial revolution now, and the fifth one that is coming. We have to find ways that we do not continue to use divisions, conflicts, the pursuit of self-interest, wars, many things like that. I think that's what my suggestion is. We should use to end poverty, create zero hunger globally, and then decent work, and reduce all inequalities, create full employment, as I said, decent work for all. And I think we need to create digital technology to bring solutions, not to create problems. And we have created an advanced course on creativity, innovation, entrepreneurship. I started it in South Africa, and a lot of the young people, we don't just graduate them and then make them seek jobs. They do startup, and then we encourage them to use this digital technology to do many interesting things. So we have created, even there was an entrepreneurship awards and things like that. We try to use very much and creating also innovation bits to do it. So we must make education to be innovative and innovation to be educative in this difficult time we're in now, to make sure that problem solution, not multiplication. And also the youth must be not discouraged, but must use this technology to actually solve problems. So I think that's we need to go for a smart, green, educational, innovative approaches to achieve, to do, to be, to succeed. And I think to be innovators and by creating social solidarity fully. And I think that's what we need to do. We must not. We must really remove risk challenges. Through many centers, chemical weapons, erosions, liberties have never been done before. Not something that is. We should also use it. Digital technology for alternative energy, renewable energy, for minerals, raw materials, agriculture transformations we need to do, water treatment we need to do, disease diagnosis and screening we need to do, drug delivery, food security, construction, health, pest detection, control, air pollution remediation. We need to do that. So my suggestion is that the opportunities are many with this digital technology, but the dangers are equally many. What is not yet settled is whether the opportunities will prevail over the risks and dangers. So knowing what to do and not do to make us achieve food development with digital technology is still on the agenda. So let's try to make a difference. We all need to engage, keep on keeping on forwards and onwards to achieve fully integrated approaches for a solution to our problems. So I think that's my brief suggestion for all of you. Thank you very much. All right. Thank you. Thank you.
Thank you, Professor Mamu, for joining with us. So if any participants have any query, so you can ask to sir. Otherwise, we will end the session. Okay. So thank you so much, अभिनव सर. और मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद में सभी पार्टिसिपेंट्स आपके द्वारा जो अ, दिया गया व्याख्यान है उससे ज्ञानवर्धन हुए होंगे. And I am especially thanks to Professor Mamo for joining with us, and to Dr. Uday Bhan sir, convener, co-convener and organizing secretary of this uh, event. और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अभिनव सर का, जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमें व्याख्यान दिया. और इसके लिए धन्यवाद कृष्णा मोहन जी का, जिन्होंने हमें सर का नाम सजेस्ट किया और हमने सर को इनवाइट किया, रिक्वेस्ट किया और सर ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया. सो थैंक यू सर. और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब कभी आगे भी हम लोग आपसे निवेदन करेंगे तो आप हमारे निवेदन को स्वीकार करेंगे. और अवश्य बिल्कुल अवश्य. आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं और भविष्य में एक उज्जवल भविष्य बने, आपका ये शुभकामनाएं है, शुभेच्छा है. और सबका सब स्वस्थ रहे, खुश रहें. नमस्ते, धन्यवाद. Thank you, sir.